साथ में रहना मतलब आप सोचो, आप सामने सामने रह रहे मतलब। उन्होंने ये एक्चुअली पूरा सोच समझ के किया। যে মানুষটাকে দাদা বলে বিশ্বাস করেছিলাম আজ তার জন্যই পথে বসতে হচ্ছে আমাদের। এমন বিশ্বাসঘাতকতা আমরা কল্পনাও করিনি। এই কথাগুলো বলেছিলেন বাংলার এক সময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, সত্যিই কি তারা প্রতারিত, নাকি এই অভিযোগের আড়ালেই লুকিয়ে আছে আরেক রহস্য? এই কাহিনী শুধু আর্থিক প্রতারণার নয়, এই কাহিনী একে অপরকে ঘায়েল করার, এই কাহিনী বিশ্বাস আর বঞ্চনার এক জটিল গল্প। বলিউড হোক বা টলিউড, দু জায়গাতেই যার পরিচিতি সেই পূজা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তার স্বামী কুণাল বর্মা, অভিনয় দুনিয়ার চেনা মুখ। হঠাৎ করেই সমাজ মাধ্যমে এক বিস্ফোরক পোস্ট দিয়ে তারা জানান এক নিকট বন্ধু তাদের ঠকিয়ে পথে বসিয়ে দিয়েছেন। তাদের ভাষায়, বিশ্বাস করে সবকিছু দিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু এখন কিছুই নেই। সন্তানকে নিয়ে কোন পথে এগোবো বুঝতে পারছি না। তবে সেই সময় নাম প্রকাশ করেননি তারা, যার ফলস্বরূপ দর্শকদের মনে প্রশ্ন জন্ম নেয়, কে এই প্রতারক? কেনই বা এত চুপ করে ছিলেন তারা? সময় গড়ায়, গুঞ্জন বাড়ে, আর তারপর এলো সেই দিন। অবশেষে সাংবাদিক বৈঠক ডাকলেন পূজা এবং কুণাল, প্রকাশ্যে আনলেন সেই বন্ধুর নাম, শ্যামসুন্দর দে, বাংলার চেনা মুখ, একাধিক সিনেমার প্রযোজক। পূজা বলেন, তিনিই আমাদের পথে বসিয়েছেন। প্রথমে আমাদের পরিবারের একদম আপনজন হয়ে উঠেছিলেন, তারপর ব্যবসার নামে আমাদের থেকে একাধিক টাকা নেন। এমনকি মুম্বাইয়ের বড় প্রযোজকের সঙ্গে আলাপও করিয়ে দিই ওর জন্য, কিন্তু কিছুই ফেরত পাইনি। শ্যামসুন্দর দেকে একসময় পূজা এবং প্রসেনজিতের সঙ্গে কাজ করতেও দেখা গিয়েছে, কিন্তু পূজার দাবি সেই কাজের সম্পূর্ণ পারিশ্রমিক তিনি পাননি। এই অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে শুধু টাকা নয়, আবেগও। পূজা ও কুণালের বক্তব্য অনুযায়ী তারা শুধু লগ্নিই করেননি, তাদের বিশ্বাস, তাদের স্বপ্ন, এমনকি তাদের নিরাপত্তাকেও বন্ধক রেখেছিলেন। তাদের ভাষায়, আমার বাড়ি বন্ধক রেখেছিলাম, সোনা বন্ধক রেখেছিলাম, সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কাজ করেছিলাম, কিন্তু সবটাই হারালাম। তবে এখানেই শেষ নয়, মুখে মুখে বিতর্ক নয়। শ্যামসুন্দর দে এর পাল্টা জবাব দিলেন সংবাদ মাধ্যমকে। হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন হয়েছিল, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা আমাকে অপহরণ করবেন, মারধর করবেন। তিনি দাবি করলেন, গোয়া পুলিশ আমাকে উদ্ধার করেছে একটি বাড়ি থেকে, তারপর আমি থানায় অভিযোগও দায়ের করেছি। প্রথম প্রমাণ প্রশাসনের কাছে আছে। এই পাল্টা দাবি দর্শকদের মনে আরো জটিল করে তোলে একটি প্রশ্ন, অভিযোগ সত্যি নাকি সবটাই নাটক? পূজা কুণালের দাবি অনুযায়ী শ্যামসুন্দর তাদের কাছ থেকে একাধিক ব্যবসায়ী প্রজেক্টের নামে টাকা নেন। মুম্বাইয়ের বহু বিখ্যাত প্রযোজক ও কাস্টিং ডিরেক্টরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার পরেও কোনো কাজ শুরু হয়নি। 3 বছর আগে একটি সিনেমার পারিশ্রমিক এখনো পাননি। পারিবারিক সম্পর্ক ব্যবহার করে শ্যামসুন্দর ধাপে ধাপে তাদের সর্বস্ব কেড়ে নেন। অন্যদিকে শ্যামসুন্দর বলেছেন, সবকিছু পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে হয়েছিল। তিনি কোনো প্রতারণা করেননি, বরং তাকে অপহরণ করে আটক করে রেখে ভয় দেখানো হয়েছে। পুলিশের কাছে সব তথ্য প্রমাণ আছে এবং আইনি পথে তিনি পদক্ষেপ নেবেন। প্রযোজকের আরো দাবি, আমার বিরুদ্ধে অর্থ ফেরত না দেওয়ার অভিযোগ, ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অপহরণ, শারীরিক হেনস্থার। পূজা কুণাল বুঝতে পারছেন কোন অভিযোগ বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাই নিজেদের বাঁচাতে বাধ্য হয়ে ভুল বক্তব্যে বাকিদের ভোলাতে চাইছে। এই ঘটনা আবারও প্রশ্ন তোলে, টলিউড ও বলিউডের মিশ্র ব্যবস্থায় শিল্পীরা কতটা নিরাপদ? বন্ধুত্ব, পারিবারিক সম্পর্ক এবং বিশ্বাস কি এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে এক ধরনের প্রলোভন? পূজা এবং কুণাল আজকের দিনে এক সন্তান সহ জীবনের পুনর্গঠনের কথা ভাবছেন, কিন্তু এই ঘটনার পর তারা বলেছেন আর কোনো বন্ধুকে বিশ্বাস করতে ভয় লাগে।
नहीं, शी शुड बी सॉरी फॉर व्हाट शी हैज डन, क्योंकि कुणाल का जो फोन नंबर है उसमें विजिबल है जो उन्होंने स्क्रीन मुझे कहाँ से फोन आ रहा है आप लोग को पता है। मैं अगर आपको अपनी ब्लॉक लिस्ट बता दूंगा ना, मतलब मुझे रात को मैंने लोगों को थ्रेड के साथ साथ में मुझे ऐसे ऐसे ऑब्नॉक्शियस चीजें बातें बोली जा रही है मुझे कि मतलब कुछ तो मेरे फैंस हैं जो मुझे बोल रहे हैं, आउट ऑफ कंसर्न भी बोल रहे हैं और फिर उसके बाद में आउट ऑफ हेट्रेड भी बोल रहे हैं कि हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू किडनैप समवन। मतलब भाई तू मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आर वी गोइंग थ्रू। एंड मे बी सबके लिए बहुत इजी होगा एक्सटॉर्शन, ये हमारे लिए नहीं है, बिकॉज हमारा बच्चा है यार। आज ये सब जो हम कर रहे हैं, जो तमाशा हो रहा है, वो हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है यार। वी वांट हिम टू बी लाइक यू नो लाइक अ गुड सोल, अच्छा इंसान बने, उसको अच्छे तरीका देते हैं हम, साले उसको शुगर तक नहीं देते हैं, उसको इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं। और हमारे साथ ये चीज हो रही है कि हम उसके माँ बाप क्या हैं, उसके माँ बाप हैं किडनैपर्स हैं, और लोग हमारे पैसा हमने उसको किडनैप करके हम एक्सटॉर्ट करें। क्या मतलब, मालविका दे जो भी है, हमको आपसे आपसी दुश्मनी नहीं है, मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा तो जहन में रखती कि आपको पता है ना आपका पति कैसा है, तो इतना तो रखती कि यार उसको देखकर हम पे सब डालने से पहले मे भी शायद आपने लॉयर के कहने पे किया होगा। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी टेक्स अ लॉयर, ये जो लॉयर का जो गेम होता है ना, ये मुझे समझ में नहीं आता। आप मेरा खून काट लोगे तो आपको ये लगेगा, यही दिखेगा कि मैं भाई सच्चा ही हूं और मैंने सच्चाई पे ही चीजें की है आज तक, जो भी किया काम किया है, जैसे भी किया है, जो भी जितना भी किया है, जितना भी अपना मुकाम बनाया वो मैंने अपने दम पे बनाया, किसी से भीख नहीं मांगी जो इन लोगों ने किया हुआ है। और जो लोग करते हैं, ये पूरी दुनिया ऐसी ही चल रही है। और मैं बोलूंगा आप सब लोग को सतर्क रहो। ये बाजू में जो बैठा है कोई भी हो सकता है, जब वो साला 3 साल से मैं जानता हूं जिस इंसान को, वो ऐसा कर सकता है, मेरे घर में आके मेरे बच्चे को देख के वो कर सकता है, तो मतलब मैं आज इस पे भी क्या ही भरोसा करूं। मैंने इसको कितने मतलब 1 हफ्ते पहले मैंने इसको सब बोला है कि मैं आज तक उसका गिल्ट में हूं कि मैंने इसको कैसे बोला। मतलब कि आई ब्लेम यू, ये जो भी किया है तुमने किया है, तुम्हारी वजह से आज मुझे देखना पड़ा। मैं रात भर सो नहीं पाता था यार। मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक इज्जत भी बहुत होती है। आज मेरे भी जो मैं शो कर रहा था उसमें वो शो से मुझे निकाल दिया गया। उसने बोला था कि मेरी कंटिन्यूटी है, लेकिन मुझे आज मैं जुलाई में शूट करने वाला था। इसका कौन भुगतान देगा? आप लोग देंगे? जो हमारा पैसा लगा है, जो मैंने मेरा जो अभी जो हमारा लोन का पैसा है, जो हमारा जो इंटरेस्ट लगने वाला है 2.5 लाख रुपए, आप लोग देंगे? श्याम सुंदर देगा? कौन देगा? कोई नहीं देगा ना। तो तमाशा करो, लेकिन इन अ वे करो कि आप मुझे दे दो 2 करोड़ रुपए तो मैं शांत हो जाता हूं, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूं। उन्होंने अपनी औकात बताई, अगर मैं अपनी औकात बताऊंगा ना तो फिर मैं लॉ क्या पुलिस क्या, अगर मैं सच्चा हूं तो सच्चा हूं, फिर मैं वो नायक बन जाऊंगा। फिर बोलने पे आता हूं ना तो फिर मैं सुनूंगा नहीं, क्योंकि आई एम राइट मतलब आई एम राइट। बट क्या अभी लॉ है, ये है। हमारे को एफआईआर के लिए 1.25 महीने हो गए यार, हमारी एफआईआर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दिया था उस कॉन्ट्रैक्ट में। जब वो तेरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो आर्बिट्रेशन क्लॉज कहां से आ गया? जब वायाकॉम 18 ही नहीं है तो मैं तो बोलूं वायाकॉम 18 जितने भी लोगों को उसने लिया उनको भी उस पर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को सबक नहीं मिलेगा तो फिर यार ये तो होता रहेगा ना, ये तो होता ही रहेगा। हम जैसे बेवकूफ बनेंगे, हम है ही चूतिए ही, हम सीरियसली हम चूतिए हैं। बट इसका कहीं तो एंड हो। होते हैं स्पैम, होते हैं पेटीएम पे होते हैं, होते हैं वो सारे पता नहीं चलता है। 10-20 हजार आप दे देते हो किसी को, लेकिन साला ये सामने आके जो मुखोटा पहन के इसने जो हमारे साथ किया हुआ है, मतलब मैं रोया हूं। मेरे हाथ में आज सोना था, यहाँ था, सब बैंक में है। कोई देगा? आप लोग देंगे? कोई देगा हम लोग को? उसका मेरे को लोन देना है। जितने भी मैंने पैसे कमाए वो सारे मेरे इंटरेस्ट में जा रहे हैं। अभी भी मैंने एक जो मेरा फ्लैट दूसरा वाला है, मैंने जो मेरे वो भी मेरे नाम पे, वो भी मैंने मॉर्गेज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि अब मुझे मेरे बिल्डर को पैसा देना, कहां से दूंगा? इसका जो 2-3 जो चीजें थी, इसकी अपॉर्चुनिटी थी, वो भी चली गई। क्यों? क्योंकि पहले आप अपने आप को क्लियर करो। अरे क्लियर करो, क्या क्लियर करो यार? हमने पैसा दिया, बात खत्म, हमको हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। हम उससे गोवा में मिलने गए, और क्या किया हमने? और उसने हमको बोला कि वो पैसा देगा, तो दे रहा था, और फिर उसने हम पे लगा दिया और उसकी बीवी ने लगा दिया। और कुछ लोग जो हमको जानते थे वो भी हमारे अगेंस्ट हो गए, जो उसके हैं चट्टे बट्टे जो भी है। सो दिस इज वर्ल्ड यार, आई नो, ये ऐसी ही दुनिया है। It's okay, relax. नहीं, ये एफआईआर हुई है, एफआईआर अभी 16 तारीख को अभी तो हुई परसों तो एफआईआर और हुई है। अभी पुलिस जो भी एक्शन लेना है वो लेंगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो स्टार्ट करेंगे। तो और मुझे जहाँ तक
आज मुझे कोई लीगल नॉलेज नहीं था अब तक, क्योंकि ये सब चीज़ें जनरली किसी के साथ तो कभी होता नहीं। तो अब मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ा वक्त तो लगेगा, बट मुझे पूरा भरोसा है हमारे सिस्टम पे कि हमें जस्टिस जरूर और अगर वो मिलेगा। सुन ले, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये बहुत काम है, मैं काम नहीं हूँ। मैं भी काम हूँ, इसकी वजह से मैं काम हूँ। अगर जो भी उसके लॉयर है, जो भी है, सेटलमेंट नहीं होगा। हमको पूरा अपना पैसा चाहिए, क्योंकि वो मेरी मेहनत का पैसा है। विथ इंटरेस्ट चाहिए हमको। एंड हम यही चाहते हैं कि अगर वो हमें पैसे नहीं लौटाए तो एटलीस्ट ही शुड बी पनिश्ड, ही शुड बी पनिश्ड। ताकि और किसी के साथ ये ना हो। बस हम यही चाहते हैं। मैं नहीं चाहता था, आई डेंट वांटेड टू बी टू शो दिस काइंड ऑफ नेचर ऑफ माइंड, बट आप समझो यार व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। आई एम फाइटिंग विद माय वाइफ, आई एम नॉट लुकिंग एट माय किड बिकॉज I really feel very bad because 3 महीना बहुत छोटा होता है, लेकिन हमारे लिए 3 महीना बहुत बड़ा हो गया। मतलब हम आई कांट टेल यू। साला यहाँ काम करने में इतनी जिंदगी निकल गई है, काम मांगते मांगते इतनी जिंदगी निकल गई, अब साला इससे झेलो। साल की शुरुआत ठीक हुई थी, यू गाइस नो इट है, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जो पैसे कमाए साला, अब वो इंटरेस्ट में देंगे हम। हमारे साथ तो गलत हुआ है, लेकिन सामने वाला वहां पे बैठ के वहां पे आराम